ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਮੋਸ਼ਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੈਕਟਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਫੋਰਸ? ਆ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਫੋਰਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ? ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਬੋਡੀ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਬੋਡੀ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਉਹ ਬੋਡੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਵਾਟ ਵੁੱਡ ਹੈਪਨ? ਇਹ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਰਕਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਮੂਵ। ਸੋ ਫੋਰਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਫੋਰ ਮੂਵਸ ਔਰ ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਮੂਵ ਏ ਬੋਡੀ ਐਟ ਰੈਸਟ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਬੋਡੀ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਵੀ ਭਰਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਟੋਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਬੋਡੀਜ਼ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਸਟੋਪਡ ਬਾਈ ਅਸ ਬਾਈ ਅਪਲਾਈਂਗ ਫੋਰਸ। ਕਈ ਬੋਡੀ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ, ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੋਰਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਦੈਨ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਫੋਰਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੁਸ਼ ਔਰ ਪੁੱਲ which you saw number 1 change or tends to change state of a body at rest or moving with uniform। ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ ਅਲੋਂਗ ਦ ਸੇਮ ਲਾਈਨ। ਅਗਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ? ਚੇਂਜ ਔਰ ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਚੇਂਜ ਸਟੇਟ ਆਫ ਏ ਬੋਡੀ ਐਟ ਰੈਸਟ ਔਰ ਮੂਵਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਈਏ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੇਂਜ ਔਰ ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਚੇਂਜ direction of a moving body। ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪੁੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫੋਰਸ। ਨਾ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਫੋਰਸ? ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਫੋਰਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਾਅਸ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਐਸਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਲੈਟ ਅਸ ਡਿਫਾਈਨ ਫੋਰਸ। ਸੋ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ product of mass and acceleration of a body। Force acting on a body is defined as product of mass and acceleration। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੇ ਇਸੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਫ? ਐਫ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਏ। ਹੁਣ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਏ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਔਰ ਇਨ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਐਫ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਣਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਸੋ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ? ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਏ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫੋਰਸ ਦਾ? ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਇੱਥੇ,
dimensional formula of force is m1 l1 t minus 2 आया जब एक्सलेरेशन का एल टी माइनस 2 इंटू एम साढ़े को आ चुका ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ फोर्स की डेफिनेशन कि किस तरीके एक डिफाइन भी कर सकते हैं इट्स प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सलेरेशन ये रिलेशन सानू न्यूटन के सैकेंड ला तो मिलिया सी ना हुण आपां देखी वाट आर द यूनिट्स भी ये फोर्स नूं मैयर करने के यूनिट्स होणगे असीं पढ़े सी फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स फोर्स की है फोर्स इज ए ड्राइव्ड क्वांटिटी ये यूनिट आपां डिस्कस किया एक उदों न्यूटन एक होर किया सी डाइन सो लैट अस डिस्कस यूनिट्स ऑफ फोर्स ਹੁਣ फोर्स के दो तरह यूनिट जोड़े ने कॉमनली इन्हू मिलते हैं कि नंबर 1 केड़ा है एब्सोल्यूट यूनिट्स जेडे मोस्टली यूज़ करते हैं ये कौन कौन आ जाता साढ़े कोल फर्स्ट नंबर पा दिए एस आई एब्सोल्यूट यूनिट और फोर्स इज न्यूटन स्मॉल एन तो शुरू करना सी या सिंबल की कैपिटल एन सो एस आई जोड़ा यूनिट एब्सोल्यूट है दैट इज न्यूटन हाउ डू वी डिफाइन न्यूटन व्हाट इज 1 न्यूटन वी नो एफ इज इक्वल टू एम ए अगर आंसर 1 लगाना चाहिए एफ कितों 1 आएगा इफ एम इज इक्वल टू 1 kg एस आई सिस्टम च मास का यूनिट की है किलोग्राम एंड ए इहदा की है 1 मीटर पर सैकेंड स्केयर दैन एफ की है एफ इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सैकेंड स्केयर इज इक्वल टू 1 kg इकट्ठा लिख दिए मीटर पर सैकेंड स्केयर और इट इज़ कॉल्ड 1 न्यूटन सो किदों कहांगे बॉडी ते फोर्स 1 न्यूटन लगती पई है अगर किया डिफाइन करना है इफ ए बॉडी ऑफ 1 kg is acted upon with acceleration of 1 meter per second square then the force acting is said to be 1 Newton. The force which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg is called 1 Newton. वो फोर्स जी बॉडी 1 किलोग्राम की बॉडी च कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे 1 मीटर पर सैकेंड स्केयर दैट फोर्स इज कॉल्ड 1 न्यूटन फोर्स सो एस आई एब्सोल्यूट यूनिट साडा आ चुका एक सैकेंड साडे को आ जाएगा इत्थे आपां चेंज कर सकते हैं ये तुसीं नोट कर लो सी जी एस की होएगा साडे को सी जी एस एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन ये भी ना असीं पढ़ चुके हैं हाउ डू वी डिफाइन डाइन सेम हुण सी जी एस यूनिट की गल असीं कर रहे हैं मास कश आएगा ग्राम च लेट अस टेक ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम अगर इस बॉडी 1 ग्राम च कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए 1 सेंटीमीटर पर सैकेंड स्केयर फिर असीं कहांगे जी फोर्स आ दैट इज़ 1 न्यूटन सॉरी 1 डाइन इत्थे भी आपां चेंज कर दईए सारी डेफिनेशन सेम रहनी है सिर्फ ख्याल रखना जिथे किलोग्राम उत्थे ग्राम आ गया जिथे मीटर पर सैकेंड स्केयर उत्थे सेंटीमीटर पर सैकेंड स्केयर आ गया तो फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सैकेंड स्केयर किथे इन ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम
ਉਹ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ 1 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ that is called 1 dyne। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਡਜ਼ਨਟ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਦੈਟ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅਰਥ 'ਤੇ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਅਰਥ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੈਨਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਫੋਰਸ ਵੁੱਡ ਗੈਟ ਚੇਂਜ। ਬਟ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਯੂਨਿਟਸ ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣਾ SI ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਯੂਨਿਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊਟਨ ਅਤੇ ਡਾਇਨ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਬਸ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਨਿਊਟਨ ਐਂਡ ਡਾਇਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ 'ਚ। ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੀ 1 ਨਿਊਟਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10⁵ ਡਾਇਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਵਾਟ ਇਜ਼ 1 ਨਿਊਟਨ? ਇਟ ਇਜ਼ 1 kg ਇੰਟੂ 1 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਇੱਕ ਆਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ SI ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ CGS ਤਾਂ 1 kg CGS 'ਚ ਕਿਚਨ ਦਾ ਮਾਸ ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨੇ 1000। 1 ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੇ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਏ 1 2 3 4 ਐਂਡ 5 ਇਕੱਠਾ ਲਿਖ ਦਈਏ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡਾਇਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ SI ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ CGS 'ਚ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰ ਦਈਏ, CGS 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਹ ਅਸੀਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਲਏ ਫੋਰਸ 'ਤੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਫੋਰਸ। ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਪੌਨ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਹੁਣ ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਡਸਟਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਮੂਵ ਟੁਵਰਡਸ ਅਰਥ। ਸੰਨੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਪਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਨੀਚੋਂ ਹੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਵਿਦ ਦਾ ਅਰਥ। ਅਤੇ ਕੌਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਆ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਜੱਜਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਡਸਟਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਅਰਥ ਨੀਚੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਫੋਰਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅਪਲਾਈਡ ਟੂ ਲਿਫਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਗਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦੀ ਪਈ ਹੈ ਦੈਟ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ। ਉਹ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਵੇਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦੀ ਪਈ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਵੇਟ। ਸੋ ਮਾਸ ਅਤੇ ਵੇਟ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮਾਸ ਕੀ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹ 'ਚ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕੰਟੇਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਵੇਟ ਕੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਅਰਥ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟਸ। ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ SI ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ किलोग्राम फोर्स और किलोग्राम वेट। kgf लिख लो चाहे kgwt डॉट किलोग्राम वेट। ਹੁਣ फिर देखिए असी what is force ma। in this case ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ that is acceleration due to gravity। जी की चीज़ है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੈਸੇ ਪਲੇਸ ਟੂ ਪਲੇਸ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਵੈਲਿਊ अगर कोई ना देती हुए थे दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्केयर। तो ये फिल करके देखिए असी मान लो लेट m इज इक्वल टू 1 किलोग्राम एंड a इज इक्वल टू g। एक्सलेशन कितने बराबर आप लैनी है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रैविटी, उसकी वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्केयर। तो किस तरह डेफिनेशन साढ़े को आ जाएगी, रब कर रहा एफ इज इक्वल टू मास कितना है 1 kg, एक्सलेशन कितनी आ रही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्केयर। इट बिकम्स 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्केयर और इट इज़ 1 kgf। और दूसरा नाम की दा 1 किलोग्राम वेट, इनू असीं कहने हैं। सो बिल्कुल वो वर्गी डेफिनेशन दो साढ़े को तरीके ने डिफाइन करते हों, जां तो कह दिए इट इज़ द फोर्स विद विच ए मास ऑफ 1 kg इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड अर्थ। 1 किलोग्राम का जिहड़ा भार आ ਉਹਦੀ कितनी अट्रैक्शन हो रही विद अर्थ, दैट इज़ 1 किलोग्राम फोर्स। जां असीं इहनूं डिफाइन कर दिए उस फॉर्म च जिस तरह पहलां कीता हैगा 1 किलोग्राम फोर्स या 1 किलोग्राम वेट फोर इज द फोर्स which produces an acceleration of कितनी acceleration 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in a body of mass 1 किलोग्राम। बिल्कुल डेफिनेशन सा जान रिमेंबर करनी याद करनी आसान हो जाएगी ना, जिस तरह लास्ट डेफिनेशन सी। तो वो फोर्स जी 1 किलोग्राम वेट से कितनी एक्सलेशन प्रोड्यूस कर दे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज़ कॉल्ड 1 किलोग्राम फोर्स या 1 किलोग्राम वेट। क्लीयर हो गया साढ़े कोल, ये साढ़े को आ चुका फस्ट। सैकेंड असी इत्थे डिफाइन करना है वो किहड़ा CGS ग्रेविटेशनल यूनिट किहड़ा आ जाएगा साढ़े कोल, इत्थे क्या आ जाएगा GF और GW, ग्राम फोर्स या ग्राम वेट। की देखा अगेन आप F इज इक्वल टू MA, M की इस जगह पे आप लै रहे M इज 1 ग्राम, एक्सलेशन की लेना एक्सलेशन ड्यू टू ग्रैविटी। वैल्यू वैसे तो बच्चे को याद होती है, अगर नहीं भी याद तो याद रखना है CGS सिस्टम की वैल्यू कितनी है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आ वैल्यू ख्याल रखना। हुणे आप देखी सी ना G इज इक्वल टू कितना आया सी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। की डिफाइन करना सी इधर खड़ना 9.8 मीटर च कितने सेंटीमीटर ने 100 सेंटीमीटर, की होगा 98/10 इंटू 100 कैंसल हो गया, साढ़े को कितना आ जाएगा आंसर 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रैविटी इन CGS सिस्टम। हुण फिर की देखना है, इस जगह ते 1 ग्राम आ गया साढ़े कोल, इत्थे की आ चुका है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इत्थे कितना आएगा साढ़े कोल 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज़ कॉल्ड 1 ग्राम फोर्स या 1 ग्राम वेट। सेम डेफिनेशन आप एक सानू आ गई, दूसरी अपने आप आ जानी है। सो 1 ग्राम फोर्स कर देना करदा इज द फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ कितनी है इस केस 980 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम।
सो असीं यूनिट याद रखने ने किहड़े एसकेएच की आ, एक ग्राम जिहड़ा भार साडे को मास आ उहनूं अर्थ किन्नी फोर्स नाल अट्रैक्ट करदी पई है, दैट इज़ कॉल्ड 1 ग्राम फोर्स। तो एक्सेलरेशन कितनी है 980 आपां देख लिया गा। इन्हां दोवां च रिलेशन देखना ये भी आ जाएगा, जे इहदा रिलेशन न्यूटन नाल लभना वो भी यही कर सकते हैं। सो लेट अस टेक वेरीअस केसिस। हाँ जी देखिए फिर 1 किलोग्राम फोर्स असीं की बनाना इस साइड ते, असीं बनाना चाहते हैं ग्राम फोर्स। इधर की साडे को आ रहा सी 9.8 एक्सलेशन आ चुकी सी मीटर पर सैकेंड स्केयर। kg मीटर पर सैकेंड स्केयर आ गया साडे कोल मास एंड एक्सलरेशन। CGS सिस्टम च 1 kg 1000 ग्राम एंड दिस 1 मीटर कितना आ गया साडे कोल 100 सेंटीमीटर आ चुका। डन आ गया साडे कोल कितना आ गया 980 ने कर दिया आपस इंटू 1000 ग्राम सेंटीमीटर पर सैकेंड स्केयर। पर ख्याल रखना इत्थे सानू याद होए भी 1 ग्राम फोर्स की वैल्यू कितनी है। ध्यान स्टैप देख लेना प्लीज। 980 1000 डिवाइडेड बाय 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सैकेंड स्केयर आ साडी आई वैल्यू। आ ख्याल रखो मैं क्यों किया, चलो मैं बच्चे कन्फ्यूज कर जाते किस टाइम इतने आप एक स्टैप बढ़ा दिए इतने। इट कम्स आउट टू बी 980,000 4 वर्ग ग्राम सेंटीमीटर सैकेंड स्केयर। हुण इस डिवाइड 1 किलोग्राम फोर्स टू 1 ग्राम फोर्स में डिवाइड करके देखिए भी की रिलेशन बनता इन्हां दा आपस च। ऊपर कितना आ गया किलोग्राम 1 2 3 4। हाँ जी व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1 ग्राम फोर्स, इट इज 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सैकेंड स्केयर। की देखोगे कटिंग करके देखेंगे वी विल लेफ्ट विद 1000 ओनली। तो की रिलेशन आ गया 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 1000 ग्राम फोर्स। ये इसी इस तरह किया समझने वास्ते। वैसे हम ख्याल रखो शॉर्ट भी तो समझ आ गई है। इतने की वादा आ रहा है 1K, एक K वैल्यू की फॉर 1000 किलो वैल्यू वादा आ रही है। इट इज़ 1000 टाइम मोर दैन दिस फोर्स जो असीं देख रहे हैं स्केच। ये करके देखना आप हुण इहदा रिलेशन देखिए दूसरे साइड पर। हाँ नोट कर लिया। नेक्स्ट की देखिया सी 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 1000 सॉरी 9.8 कितना साढ़े कोल किलोग्राम मीटर पर सैकेंड स्केयर। न्यूटन कितना दा है किलोग्राम मीटर पर सैकेंड स्केयर। सो 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन साढ़े को आ चुकी है। ये रिलेशन साढ़े को बन गया। सिमिलरली ग्राम फोर्स का देखना है तो की आ गया साढ़े कोल व्हाट इज ग्राम फोर्स, इट इज़ 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सैकेंड स्केयर। आखिरी चीज़ साढ़े को आ गई है इट इज़ डाइन। सो 980 डाइन इस तरह साढ़े को आ चुका रिलेशन। फिर देखना है कन्वर्ट करके देखना दिस इज इक्वल 10⁵ डाइन करके देखोगे डिवाइड करके अगेन इतों भी ही कर सकते हैं रिलेशन। सो दीज आर डिफरेंट रिलेशंस ऑफ एब्सोल्यूट रिलेशन अपना यूनिट्स ऑफ फोर्स एंड ग्रेविटेशन यूनिट्स ऑफ फोर्स। ये असीं कर लिया, इनू ध्यान नाल देख लेना। सो पहली गल सानूं समझ आ गई फोर्स की आ,
इट इज़ पुश और पुल, जी मेन गल आप देखनी है, इट इज़ पुश और पुल विच काजेस ए बॉडी एट रेस्ट टू मूव और ट्राइज टू मूव द बॉडी एट रेस्ट, ਜਾਂ ਤਾਂ मूव कर देगी ਜਾਂ कोशिश करेगी। सैकेंड की आ इट विल ट्राई टू स्टॉप ए बॉडी इन मोशन, ਜਾਂ ਤਾਂ ट्राई करेगी स्टॉप करने की ਜਾਂ स्टॉप ਉਹਨੂੰ कर देगी। थर्ड की आ इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन और ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, नैक्सट अं कंसैप्ट आप डिस्कस करना मोमेंटम। आ नाम ਤੁਹਾਡੇ वास्ते वैसे मोमेंटम, वैसे अगर पूरा नाम ਇਹਦਾ लिखना तो कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। ये ਤਾਂ शो कर रहा वी आर डीलिंग विद द मोशन अलोंग ए लाइन, जिन्ना असीं पढ़ते हैं अज तक वो की आ मेनली पढ़ते हैं मोशन अलोंग ए लाइन, भी लाइन च बॉडी मूव करती पई आ। जित सर्कुलर मोशन इज आल्सो देयर, जितना पखा घूमता साडे कोल, टायर घूमता पिया वा, धरती अपने एक्सिस से घूम रही आ, धरती अर्थ के आसे पासे जी ऑर्बिट च घूम रही साडे कोल, दैट इज सर्कुलर मोशन। उहदे विच भी मोमेंटम होएगी, दैट उहदा नाम चेंज करांगे उस जगह पर। तो फिलहाल अगर लिखा है मोमेंटम, इट मीनस वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर मोमेंटम। ये की दसेगी, इट डिफाइंस अस द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी। It gives the quantity of motion contained in a body। कि किसी बॉडी च कितनी मोशन कंटेन हैगी आ, कितनी मोशन पई आ, कौन दसेगा? मोमेंटम दसेगी। किस तरह? दैट विल बी क्लीयर फ्रॉम द डेफिनेशन। और मेन गल, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। फोर्स का की फर्क है? फोर्स का की से आ जगह ते एक्सलरेशन, मोमेंटम च की आ मास एंड वेलोसिटी। की देखिए फिर इन्हों पी ना आप लिख दें, स्मॉल पी ना एम वी। हम वेलोसिटी की है? वेलोसिटी इज द वैक्टर क्वांटिटी। सो अगर ज़्यादा बैटर लिखना तो असी वैक्टर डाल देंगे। अगर मैग्नीट्यूड की गल करनी, सिंपली पी इज इक्वल टू एम वी। सो रिलेशन बच्चे भुल जाते हैं बेसिकली भी आ वैक्टर क्वांटिटीज़ है ने, तो आहो रिलेशन जोड़ा पी इज इक्वल टू एम वी उन्होंने माइंड से रह जाता। बट तुम पक्का कर लो भी मोमेंटम एज वेल एज वेलोसिटी बोथ आर वैक्टर क्वांटिटीज़। तो मैं लिख भी देना इत्थे, मोमेंटम मीन्स लीनियर मोमेंटम इज द वैक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज ए वैक्टर क्वांटिटी। डन हो गया। इट्स डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा? इट्स डायमेंशनल फार्मूला उदों भी बनाया सी असी फर्स्ट चैप्टर इज, हुण भी फिर ट्राई कर सकते हैं। मास इंटू वेलोसिटी, मास द एम 1 L1 T-1, ये दा डायमेंशन फार्मूला है। इसका यूनिट क्या होगा? इट्स ऐसा यूनिट इज क्या है? ऐसा मास का क्या है? किलोग्राम मीटर पर सैकेंड। फोर्स का की सी? किलोग्राम मीटर पर सैकेंड स्केयर। इतने -2 सी, मोमेंटम च -1 इतने जगह पर आए ना। ये साढ़े को मोमेंटम आ चुका। हुण गल असीं ये करना है, शुरू च असीं क्या सी, अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी भी किस तरह देखांगे असी। सपोज कर लिए असी साडे कोल एक छोटा जिहा बच्चा ट्राईसाइकिल ते है, वो खलोता उस जगह ते असी उन्होंने पुश करके मूव करना, कर लाँगे तो बड़ी आसानी ना कर लाँगे असी। फिर सैकेंड केस की आप देखिए, एक ट्रक आ फुली लोडड पिया खलोता पिया, तो सानू किसी ने कहा जाके पुश करो, तो मैं कला जाके पुश कर लग पिया, की होएगा? मेरे को नहीं होएगा। तो की होया? मैं देखा भी सेम फोर्स मैं लगा रहा, वो छोटे ट्राईसाइकिल ते वो छेती मूव कर रहा,
एडा बड़ा ट्रक आ वो मेरे को मूव नहीं कर रहा, कार ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ मूव करेगी है ना। तो की देखा है what is required there force। देखो आप की कर रहे हैं इस जगह ते मोमेंटम। तो मोमेंटम की है M एंड V। सो की देख रहे आप जिन्नी ज़्यादा बॉडी का मास होएगा उन्ना ज़्यादा बॉडी ਨੂੰ मूव करना भी औखा वा, बॉडी ਨੂੰ रोकना भी औखा। ਹੁਣ सेम आप केस देख लीए, एक ट्राईसाइकिल एक स्पीड ते आ रहा, उन्नी स्पीड ते ट्रक आ रहा, तो मैं दोनों ਨੂੰ रोकने की कोशिश करांगा तो की होएगा। ट्राईसाइकिल ਨੂੰ स्टॉप करना आसान है, ट्रक ਨੂੰ स्टॉप करना की है डिफिकल्ट आ। बिकॉज ट्रक का की है मास की है ज़्यादा, ट्राईसाइकिल का छुट घट मास है। सो फर्स्ट थिंग इट डिपेंड्स ऑन द मास, मोर द मास ऑफ द बॉडी मोर इज द मोशन कंटेन। उन्होंने मूव करना भी औखा, उन्होंने रोकना भी औखा। सैकेंड नाल ही गल आ रही वेलोसिटी की। हुण एक मैं बुलेट हैगी साडे कोल, जिहड़े मतलब साडे आर्मी के परसनस आ, अगर उन्होंने कोई गन ना होए तो कोई बुलेट्स लै जाओ, तो बुलेट्स इस तरह मारनी शुरू कर देन तो की एनमी नूं हिट कर पाएंगे नहीं, बिकॉज वी रिक्वायर वेलोसिटी आल्सो। तो अगर बुलेट मूव करेगी वो वेलोसिटी की बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो दैट कैन हार्म मच मोर दैन डैट। सो सिमिलरली एक बॉडी सानू स्लो आ रही है, एक बॉडी बड़ी फास्ट साढ़े को मूव कर रही है, तो की होएगा द बॉडी विच इज़ मूविंग विद हायर वेलोसिटी हायर स्पीड दैट इज़ डिफिकल्ट टू बी स्टॉप्ड। तो बहुत तेज़ सुटना भी औखा वा, तो बहुत तेज़ चीज़ नूं रोकना भी औखा वा। इट मीनस दोनों की प्रोडक्ट ते डिपेंड कर रही साड़ी अमाउंट ऑफ मोशन। ये गल आपां देख ली आ। हुण थोड़ा जिहा पोर्शन जिहड़ा डायरैक्टली तुहाडे सिलेबस का पार्ट नहीं आ, आपां वो डिस्कस कर लगे आ। तो तुसीं अपनी कापी ते नाल ही नोट कर लो, जिहड़ा नैक्सट पोर्शन थोड़ा जिहा दैट इज़ आउट ऑफ सिलेबस टैक्नीकली। बट क्यों करना पै रहा सानू, क्योंकि इस तो बगैर जिहड़े बाकी सानू कंसैप्ट्स आ वो समझ नहीं आने। तो की साडे कोल है वो चाहता साडे कोल असीं करनी इक्वेशनस ऑफ मोशन, पर उस तो पहला दो चार टर्म मैं आपां दसदा वो की होणगे। असीं पढ़िया डिसप्लेसमेंट, आया याद वर्ड डिसप्लेसमेंट। डिसप्लेसमेंट की है, इट इज़ ए वैक्टर क्वांटिटी है। तो की सी इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। असीं ये डिस्कस किया डिस्टेंस से हेड़ा ए पॉइंट तो बी पॉइंट से जाना, द शॉर्टेस्ट पाथ विद द डायरेक्शन फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड डिसप्लेसमेंट। ये डिसप्लेसमेंट साढ़े को आ गई। इस तो फर्दर क्या आया सी, इनू एस ना डिनोट कर दी फुल फिलहाल एस जगह तो एस उपर वैक्टर डालता बिकॉज इट इज़ वैक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज़ वेलोसिटी, वेलोसिटी की दसदी है कोई बॉडी कितनी छेती ने इत्थों जा रही है, असीं कहांगे उहदी वेलोसिटी ज़्यादा। जिन्हें ए तो बी जान तो ज़्यादा टाइम लिया, असीं कहांगे उहदी वेलोसिटी उहदी स्पीड की हैगी आ घट साडे को है। तो वेलोसिटी इस तरह का कोई जनरेशन आ जाता वा डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम। शॉर्ट च करना है तो इस तरह आसान, बट होर फर्दर आ जाता इट इज़ द चेंज इन डिसप्लेसमेंट। इस तरह भी शो कर सकते स्मॉल चेंज इन डिसप्लेसमेंट इन स्मॉल टाइम टी। तो आ डेल्टा वर्ड भी तुसीं सीख लो, अगर कितने लिखा है स्मॉल चेंज इन डिसप्लेसमेंट, एक बार लिख रहे हैं हमेशा यही मीनिंग होगा स्मॉल चेंज। डेल्टा टी की है स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक, दोनों वक्रे वक्रे नहीं है। आ डेल्टा एस तो डेल्टा टी एक ही सिंबल हैगा। फर्दर इन्हें इस तरह भी लिखा जाना डी एस अपॉन डी टी। इत्थे एक ही है स्मॉल, इत्थे वैरी वैरी स्मॉल। वैन वी चेंज वैरी स्मॉल, बहुत लागे जी मूव किया आपां, वैरी स्मॉल डिस्टेंस डिसप्लेसमेंट चेंज होई, की होएगा उस जगह ते जो टाइम आ वो भी बहुत घट लगेगा साडे कोल। जे बॉडी एक नॉर्मल स्पीड पर जा रही है तो की देखांगे स्मॉलर द डिसप्लेसमेंट स्मॉलर द टाइम रिक्वायर्ड, लॉन्गर द डिस्टेंस लॉन्गर द टाइम रिक्वायर्ड। सो आ भी वर्ड साडे को आ सकता डेल्टा एस सॉरी डी एस, जिथे डी नाल आ गया इट मीनस वेरी स्मॉल चेंज। इन एस केस की है डिसप्लेसमेंट। सिमिलर डी टी क्या है
very small change in time. सो आ वर्ड ds dt कई बच्चे भुलेखा खाते साढ़े को आगे सर डी ना डी कैंसल हो गया साढ़े को रह गया s अपॉन t। इस तरह नहीं करना, ये एक ही वर्ड है ds, जिथे भी यूज़ करना असी कर सकते हैं। सो वेलोसिटी क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। मैनू पता बहुत इन्हूं पता होना तुहाडे चों, बट फिर भी ही रिवाइज करना चाहिए। वेलोसिटी की है, इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इतने रेट ऑफ चेंज आ जाए सिंपली होर का, इट मीनस वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम, भी टाइम नाल डिस्प्लेसमेंट च कितना चेंज आ रहा वा, दैट इज़ गिवन बाय वेलोसिटी। ये सानू दे रही है। जे स्पीड कर दे तो साढ़े इस तरह आना से डी एस बॉन डी टी। इतने स्पीड आ, इतने कि आप इनू कहना डिस्टेंस हैगा। एक तो आ रिलेशन साढ़े को आ जाने इस तरह के। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डी अपॉन डी टी की आ डिफरेंशिएशन। आ वर्ड तुसीं मैथमेटिक्स काफ़ी यूज़ करना, असी फिजिक्स में यूज़ करना सिंपल डी अपॉन डी टी। इट मीनस रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ जो चेंज आ रहा विद रिस्पैक्ट टू टाइम, इस तरह का सिंबल यूज़ करना। सो इनू वेख के डर नहीं जाना, अज नहीं तो कल ये सिंबल सानू यूज़ करने ही पैने आ। सो जिन्नी छेती असीं इन्हां नाल फैमिलियर हो जाएंगे उन्ना ही चंगा साडे वास्ते। तो की देखिया आपां, ए डी एस मीन स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, जिथे भी आ जाए एस किच डिस्प्लेसमेंट साडे को। एक और वर्ड साडे को आ गया एक्सलरेशन। अगेन एक्सलरेशन की है, इट इज़ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तुसीं कहंदे याद ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर की गल साडे को, इट इज़ ए वैक्टर क्वांटिटी। एक ये कह देंगे असीं, अगे असीं कहना वेलोसिटी चेंज हो v2 माइनस v1, टाइम चेंज होगा t2 माइनस t1। जो वेलोसिटी इस पॉइंट तो साडी कितनी सी, मान लो v1, इत्थे पहुँचते पहुँचते वेलोसिटी v2 हो सकती, कोई बॉडी तेज़ भी हो सकती, कोई बॉडी स्लो भी हो सकती है। जो टाइम नोट किया घड़ी तो t2 सी टाइम, असीं इन्ने टाइम देखा इस समय तो टाइम की वेलोसिटी इन्नी सी v1 t1, इस जगह तो कितनी t2। तो की देखा, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, इनू कह सकते आप डी बी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम। होर असीं देखना है इनफाइनेटली स्मॉल, बहुत छोटा डिस्टेंस जड़ा ना, सॉरी डी बी अपॉन डी टी। वैरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग वैरी स्मॉल चेंज इन टाइम। असीं इस तरह भी कह सकते साढ़े को आ जाएगा। सो आ सिंबल असीं देख लैने, इनू एक्सलरेशन असीं कह रहे साढ़े कोल आ गया। अगर तुसीं वैक्टर मैं बार बार जान के लगा रहा भी तुहानूं याद रहे भी दीज आर वैक्टर क्वांटिटीज़। नॉर्मल डिस्कशन च वी कैन यूज सच, वेलोसिटी इज़ डी एस अपॉन डी टी, एक्सलरेशन इज़ डी बी अपॉन डी टी। दीज आर कॉमनली यूज, गलत नहीं असीं करांगे, बट एक ख्याल रखना डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलरेशन ये सारे की ने, दीज आर वैक्टर क्वांटिटीज़। नैक्सट इक्वेशनस ऑफ मोशन पढ़िया 9 या 10th क्लास असीं, पहला साडे सिलेबस का पार्ट सी, पुराने समय अजकल नहीं हैगा, पर सानूं जरूरत पैंदी इन्हां दी। इक्वेशनस ऑफ मोशन, क्योंकि अजकल असीं मन के चलते कि बच्चों को आंदा होएगा, इस करके सिलेबस घटाण करके उन्होंने ओमिट कर दित्तियां। तो की है साडे कोल इक्वेशन ऑफ मोशन की सी, एक आ सी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। याद आया, किस तरह की कंडीशन सी, सपोज ए बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी v की साडे कोल फाइनल वेलोसिटी, ए नूं की माने असीं एक्सलरेशन, टी टाइम टेकन। एक और है साढ़े को एस की है, डिस्प्लेसमेंट कह लो चाहे डिस्टेंस कह दो। आ रही है नहीं गल्लां। तो किस तरह की कंडीशन सी, बॉडी पिछों मूव करती आ रही है, पिछों बॉडी कितने आ रही सी, तो की देखा इस पोजीशन से बॉडी की वेलोसिटी कितनी है u, इस पोजीशन से जांदे दी वेलोसिटी कितनी होगी v।
ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰੀ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਸ। ਐਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਫਰਦਰ ਫਿਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ? ਟੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਡਿਸਟੈਂਸ ਯੂ ਟੀ ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਏਟੀ ਸਕੇਅਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਯੂ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2AS। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਆ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਲੇਟਰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੀਡ ਘਟਾਉਣੀ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਹ ਪਾਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ velocity can be increased if acceleration is positive. Velocity can be decreased if acceleration is negative. Similarly ਸਾਡੇ ਕੋਲ distance ਦੇਖੀਏ। distance ਕਾਹਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੋਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ। ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਰਨੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ, 60 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰੇਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਟ ਵਿਲ ਐਡ ਟੂ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਸਾਡਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੈਨ ਬੀ ਫਾਊਂਡ। ਫਿਰ ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ। ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਿਊਟਨਸ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਉਹ ਵੀ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਨਿਊਟਨਸ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 9-10 'ਚ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਊਟਨ ਨੇ 3 ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਸੋ ਨਿਊਟਨ three laws of motion। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਟ ਲਾ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਸਟੇਟਸ ਦੈਟ ਏ ਬਾਡੀ ਐਟ ਰੈਸਟ ਔਰ in uniform motion along a straight line will not change its state by itself unless an external force is applied। ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਸਟ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਬੋਡੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ 'ਤੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਟ ਸਟੇਟਸ ਦੈਟ a body by itself cannot change its state of rest or uniform motion along a straight line unless acted upon by an external force। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿਲ ਨਾਟ ਚੇਂਜ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਬੋਡੀ ਪਈ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਬੋਡੀ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਅਲੋਂਗ ਏ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਦੈਟ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਮੂਵ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ।
ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬੋਡੀ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਲਾਸ ਚੇਅਰ ਪਈ ਆ, ਇਟ ਵਿਲ ਲਾਈ ਦੇਅਰ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਈ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪੈਡਲ ਮਾਰੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਰ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਅਰ ਆਰ ਸਮ ਹਿਡਨ ਫੋਰਸਿਸ ਵਿਚ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ। ਉਹ ਹਿਡਨ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਹਿਡਨ ਫੋਰਸਿਸ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਫੋਰਸਿਸ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ, ਸਪੇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਟ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਮੂਵ ਵਿਦ ਦਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ, ਹੈ ਨਾ, ਅਨਲੈਸ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਐਕਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾ ਲਾ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਫਸਟ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵਨ ਐਂਡ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਟ ਸਟੇਟਸ ਦੈਟ rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied. The force ਕਿਹੜੀ ਹੈ? External force. It states that rate of change of momentum, momentum ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ? ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ। ਇੱਥੇ rate of change of momentum of a body is directly proportional to amount of external force applied। मैं जान के वर्ड एक्सटर्नल यूज़ कर रहा इस जगह पे, वैसे ही कह सकते फोर्स अप्लाइड। देयर आर सम इंटरनल फोर्सिस, आपस फोर्सिस लगदियां होणगीਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੈਟ ਵਿਲ ਕਾਜ਼ ਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ। ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਵੱਧ ਆਏਗੀ ਓਨੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਸੀ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਕੰਟੇਨਡ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਫੋਰਸ ਲਾਏ, ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਫੋਰਸ ਲਾਏ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰੈਸਟ ਬੋਡੀ ਤੇ ਰੈਸਟ ਰਹੇਗੀ, ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਹਾਂ ਹੀ ਫੋਰਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ? ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ? ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੈਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਦਾ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈਡ। ਡੀ ਅਪੋਨ dt ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ F, ਦਾ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈਡ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, वैसे किया बोथ आर वैक्टर क्वांटिटीज़। इट इज़ बैटर अगर असीं वैक्टर भी नाल लिख लीए, तो इन वैक्टर फॉर्म लिखना है तो तुहाडे माइंड चों ना ये गल निकल जाए भी दीज आर वैक्टर क्वांटिटीज़। dp अपॉन dt f दोनों आपस प्रोपोर्शनल है, और f इज़ प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt, जिस तरह भी कह के देख लो। When proportionality sign is removed, a constant is entered here। आ k साढ़े को constant आ जाता, proportionality constant। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ k है। here k is 1 for किदों SI and CGS units। The value of k depends upon the units chosen। तो दोनों के केस में ਇਹਦੀ वैल्यू 1 आती, साढ़े को की रहता F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। ਹੁਣ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, p इज इक्वल टू m v, मास इंटू वेलोसिटी। ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਚਾਹ देखिए इस जगह पर एक ही शो कर रहा, मैं दसिया अगे भी डी अपॉन डी टी की शो कर रहा?
डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग विद टाइम मीनस समय नाल किसी चीज़ कितना चेंज आ रहा। तो जो टाइम लगता पाया तो टाइम ना कौन चेंज करेगा, एम वी लिखता, टाइम नाल उहदा मास चेंज नहीं होएगा, चेंज क्यों होनी आ, वेलोसिटी होनी आ। सो इस चेंज को असीं इस तरह लिख सकते हैं, एफ इजिकल टू एम डी वी, मास में तो टाइम ना फर्क ही नहीं है इस केस, डी वी पॉन डी टी, वाट इज डी वी पॉन डी टी, इट इज एक्सलेरेशन। सो एफ इजिकल टू एम ए, ये साढ़े को सैकेंड ला की एक होर फार्म आ जाती है। आ स्टैप तुसीं सारे देख ले ने। तो मेन जी गल तुसीं सीखी है कि हैगा, एफ इजिकल टू डी पी अपॉन डी टी, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इस तरह कह लो। और वैक्टर नहीं यूज़ करने, मन च कन्फ्यूजन होंदी है, सिंपली लिख लो एफ इजिकल टू डी पी अपॉन डी टी, कोई प्रॉब्लम नहीं सानू। फर्दर की देखिया, आलसो ये नोट किया सी एफ इजिकल टू एम ए, मास इंटू एक्सलेरेशन, ਇਹੋ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ यूज़ करके फोर्स ਨੂੰ डिफाइन किया सी, यूनिट ਇਹਦੇ डिफाइन किए सन। और नहीं लिखना तो एफ इजिकल टू एम ए। तो सैकेंड ला तुसीं आ गल्लां याद रखनियां, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और दूसरी गल की है फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सलरेशन। न्यूटन का थर्ड ला भी आप देख लीए, आ नोट कर लो प्लीज़। थर्ड ला बच्चे नूं बहुत आसान लगता, वो स्टेटमेंट झट ही बच्चे बोल देंगे ने। It states that for every action there is equal and opposite reaction। या टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का एक रिएक्शन होंदा जिहड़ा बिल्कुल उहदे बराबर है पर अपोजिट रिएक्शन हैगा। मैं सपोज करके देखिए, आ बॉडी साडे को ए बॉडी है, इधरों आ रही सी, इन्हें किसी बी बॉडी नूं फोर्स लगाई इत्ते आके, तो फोर्स ऑन, मैं लिखता ना फोर्स ऑन बी, इन पढ़ने की जा सक लो, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, लिखता है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए ने तो फोर्स लगाई आके, तो ना रख दिए एफ बी ए, की होएगा, बी विल आल्सो रिएक्ट विद द फोर्स, बी भी नूं फोर्स लगाए गए थे, वो कितनी आएगी ए बी, एक ये फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। हुण फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड ला, ये कहता सानू न्यूटन्स थर्ड ला, फिर इट सेड दैट की होएगा एफ बी ए जिहड़ा पे लगाई सी, इनू की मिले माइनस एफ ए बी। की देख रहे हैं, जो इन्हें फोर्स लगाई बिल्कुल इक्वल फोर्स आ बट विद आपोजिट डायरेक्शन। इसका मीनिंग क्या है, नैट फोर्स कितनी आ गई, नैट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। इन्हू इधर लैके देखा तो इन इस तरह भी लिख सकते हैं आप, एफ बी ए प्लस एफ ए बी इज इक्वल टू 0, बोथ कैंसल इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एक्शन एंड डायरेक्शन आर इक्वल एंड आपोजिट। अगर मैं दीवार में मारिया किसी फोर्स नाल टच, दीवार भी मैनू रिएक्ट कर रही बैक विद द सेम। ये बड़ी एप्लीकेशन साढ़े को है, जिस तरह मैं कहता मैं इस जगह पर खलोता, कि मेरे ते कोई फोर्स लग रही है, हो सकता माइंड ना आए, पर देखो सोच के
फोर्स ऑफ ग्रैविटेशन इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन द बॉडीज। तो मेरे उत्ते फोर्स ऑफ ग्रैविटी नीचे ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਟ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, wherever there is acceleration ਕੀ ਹੈ, wherever there is force there must be acceleration। ਜਿੱਥੇ ਫੋਰਸ ਆ ਉੱਥੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗੀ, ਬੋਡੀ ਜਾਂ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਸਟਾਪ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਕੁਝ ਖੋਏਗਾ। ਬਟ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਇਟ ਮੀਨ ਦੇयर इज ਅਨਦਰ ਫੋਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆ that is also reacting it with the same force in the opposite direction। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ? अगर आ बॉडी अर्थ ते लगा रही है वेट, ਉਹਦਾ नीचे लगता पे ना, वेट की फोर्स लगती पई नीचे ਨੂੰ, ग्रेविटेशनल फोर्स। the surface of earth is also reacting with another force का reaction। तो R is equal to mg। एक्शन और एक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, ये नीचे ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। तो आ ला हर जगह ਤੇ वैलिड आ। तो न्यूटन ने 3 ਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਸ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਨਰਸ਼ੀਆ? ਉਹ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਫਸਟ ਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਅਨਲੈਸ ਐਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਅਪਲਾਈਡ बॉडी by itself cannot change its state of rest or motion। अपने आप कोई बॉडी अपनी state of rest या motion वो change नहीं कर सकती। A body by itself cannot change its state of rest और state of uniform motion along a straight line। This property of body is called inertia। भी बॉडी अपने आप अपनी स्टेट रैस्ट ही चेंज नहीं कर सकती, ना मोशन ही चेंज कर सकती। अगर मूव कर रही है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड, इट विल कीप ऑन मूविंग, उन्हें जा ही जाना। सो इनर्शिया, ये इनर्शिया कितनी तरह का फर्दर? इट इज़ फर्दर ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 तरह का इनर्शिया साढ़े को आंदा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक का मीनिंग क्लीयर आ, सारे ने क्लीयर होना अपने आप। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, पूरा लिखदा, along a straight line। शॉर्ट चाहे कह सकते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। थर्ड की इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मीनिंग क्या आ रहा? कोई बॉडी अपने आप बाय इटसेल्फ विदाउट एनी हेल्प कैनॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर रेस्ट पई तो रेस्ट पई रहना ने, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जिस तरह मैं बस बैठा पिया आराम नाल, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਖਲੋਤੀ ਵੀ, ਅਚਾਨਕ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਦੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਰੈਸਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਟੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਝਟਕ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੀਏ, ਅਗਰ ਗਲਾਸ ਇੱਕ ਲੈ ਲਓ, ਗਲਾਸ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਕੋਇਨ ਰੱਖ ਦਿਓ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ 'ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਇਨ ਵਿਲ ਫਾਲ ਡਾਊਨ। ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬੋਡੀ ਰੈਸਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਦਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਚਾਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟਾ ਝਾੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਿਕ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?
ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੈਨ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇਟ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਝਾੜਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਫਰੂਟਸ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਡਾਲੀ 'ਤੇ ਉਹ ਪੇੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਲਾਇਆ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵਾਟ ਵੁੱਡ ਹੈਪਨ ਉਹ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰੈਸਟ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਕੀ ਇਟ ਵਿਲ ਫਾਲ ਡਾਊਨ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਰੈਸਟ। ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਬੜੀ ਸਮੂਥ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਬੱਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 60-70 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦੇ ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਈ ਜਾਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲੱਗਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਲਗਾਈਦਾ ਫਿਰ ਰੋਕੀਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਅਚਾਨਕ ਘੋੜਾ ਮੁੜਦਾ ਜਾਂ ਟੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਰਕਲ 'ਚ ਘੁਮਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰ ਫੋਰਸ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ। ਬਟ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਰਕਲ 'ਚ ਘੁਮਾਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰ ਫੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਟਾ ਬਣ ਕੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸਰਕਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਰੈਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਗੋ ਇਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਕਲ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਲੱਗ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਦੈਟ ਬੋਡੀ ਵਿਲ ਮੂਵ ਇਨ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਰਗੜਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਿਆੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਦੇ ਮੂਵ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ। ਇਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਰਕਸ ਆ ਦੈਟ ਮੂਵ ਟੈਂਜੈਂਟਲੀ। ਮਿਗਾਹ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇ ਲਾਈਕ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਨੇ। ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਰੈਸਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਡੀ ਅਗਰ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਆ ਨਾ ਸਪੀਡ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੇਸਿਕਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੋਰਸ ਕੀ ਆ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਉਹ ਤੇ ਫਰਦਰ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇੰਪਲਸ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਕਸ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ class.